वो सेम अमाउंट में होगी आफ्टर एवरी मिनट. हेलो एवरीवन. Hey guys, welcome you all. Uh, so today we will be doing a new chapter which is a chemical kinetics. Just give me a while, okay? Just give me a while. Let me just change the camera settings. Okay. A very good afternoon. Yes. So today we will be discussing a new chapter which is chemical kinetics. Right. So are you all ready for this chapter? Shivam, Kriti, Sneha, Siddharth. Okay, excited, super ready. And I hope with this excitement you have completed the last chapter which is electrochemistry. Right? आपने electrochemistry cover कर लिया होगा, है ना? With most of the questions which I have given you. I'm good, Rahul. चलो. No, nothing is required. Okay. So chemical kinetics is a quite simple chapter. ठीक है. बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना है. What do we have to study in this chapter is basically the rate of reaction. Rate of reaction. हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मैं आपको बता देती हूँ. What do you mean by chemical kinetics? Chemical kinetics. So we have to study the kinetics of chemical reactions. We have to study the kinetics of chemical reaction. What do you mean by kinetics? Kinetics, movement, right? Motion, है ना? So here we will be talking about the speed of reaction, okay? The rate of reaction, okay? In which speed the reaction is happening, how much time it is taking, on what factors it depends, right? As the most important factor for the rate of reaction is basically the concentration, है ना? जब आप किसी चीज को करा रहे हो तो whether you have taken a dilute solution to do a reaction or you have taken a concentrated solution, so concentration is the main factor, okay? So we will be looking over the rate, that is the speed of reaction, okay? You know now this word is very familiar, that is the kinetic energy. Kinetic energy. So what do you mean by kinetic energy? Okay, so this kinetics we are talking about. Okay, so the rate of reaction we will be learning about in this particular chapter, the most and the foremost thing. Then the second point that we have to study the order. What do you mean by molecularity? Molecularity, you know, when we have done organic chemistry, there were few reactions where I said the order will be this, the molecularity will be this. Okay, so what is this? How we are getting all this? So this is what we will be discussing in this chapter: order, molecularity. Then after we have to study the rate of reactions, the rate of zero order reaction, the rate of zero order reaction, the rate of first order reaction, the rate of second order reaction. Okay, Hanji. Now we have to study all these three order of reactions. Nth order and the third, fourth, fifth orders are not in your syllabus. In your syllabus, we have to only study the zero order, the first order, and the second order reaction. Okay, third, fourth, fifth, nth order, no, that is not in your syllabus. Till second order. Okay, now we have to study the rate of reaction when time is equals to zero. The time is equals to 100%, that is the half lifetime. When there is a 100% reaction, when there is a half reaction. जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये rate determine करना है when the half of the reaction has been occurred or when the complete reaction has been occurred. Okay, तो एक तो होता है हमारा at time, anytime t. So these rate of reaction we will be studying in different times. Okay, when it will be t by 4, when it will be t by 3, when it will be t by 2, or when it will be the t or anytime t. Okay, so what do you mean by this? t 1 by 4 means that 1/4 of the reaction has been occurred. इसका क्या मतलब हुआ कि 1/4 रिएक्शन हुई है, राइट? एक चौथाई t 1 by 3 मतलब 1/3 रिएक्शन हुआ है. t हाफ का क्या मतलब हुआ? हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज बीन occurred, है ना? हाफ लाइफ टाइम में, टोटल की हाफ लाइफ टाइम में, लाइक हाउ मच रिएक्शन हैज बीन occurred, और एट एनी टाइम t हाउ मच रिएक्शन हैज बीन occurred, एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज t 3 by 4, दैट इज 3/4, when 3/4 ऑफ द रिएक्शन हैज बीन occurred. ओके, तो समझ में आ गया? जैसे कि इफ आई एम हैविंग दिस ग्लास, है ना? तो दिस इज अ कंप्लीट ग्लास, दिस इज 1/4 ऑफ द ग्लास, दिस इज हाफ ऑफ द ग्लास, दिस इज 3/4 ऑफ द ग्लास. गेटिंग माय पॉइंट? This is 1/3 of the glass, है ना? तो वही इसी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे all these rate of reactions at different time intervals. Okay, so what would be the relationship we will be getting? Now after this, that we have to study is we have different type of reactions. Some are the consecutive reactions. Some are the consecutive. Consecutive means A to B and B to C, and some are the parallel reactions. Parallel reactions means that you have taken A and from A you have formed B as well, and from A you have formed C as well, है ना? If you go in two different paths, you will be getting two different products. Okay, so consecutive reactions, the parallel reactions, and the elementary reactions. Okay. Exactly, I'm giving you a map, है ना, that what we have to study in the whole chapter. Okay, तो मैं आपको एक थोड़ा रफ आइडिया दे रही हूँ. Just give me a while. So मैंने आपको बताया rate of reaction we will be studying molecularity, order, zero order reaction, the first order reaction. Okay, great समझ. Okay, चलो, so let's begin with the topic. ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले I would tell you, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे rate of reaction. What do you mean by rate of reaction? Okay, it's okay, Afshan. We have to just start with the topic. So this is a roadmap. I hope that you people have noted down. Okay, आपने ये नोट डाउन कर लिया है? Okay, so this chapter is easy, tough or moderate? I would say this chapter is moderate. Okay, इसमें content बहुत ज़्यादा नहीं है. This does not have a large content, बहुत सारा पढ़ना है, and it's a very short topic. We will just be able to finish the whole topic in just 5 days. Okay, हाँ, but you need to understand thoroughly and you need to practice for the questions. Okay, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो where we were, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं. Let's begin with the chemical kinetics. So as we have already discussed, कि chemical kinetics is basically the rate of chemical reactions. Comparative, जितना electrochemistry interesting था, उतना ही interesting है. ठीक है, level electrochemistry and chemical kinetics is same.
Okay, so how you will rate electrochemistry? Tough, moderate, or easy? पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड वाज लिटिल बिट वाइड. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, दिस चैप्टर इज शॉर्ट. हाँ, वो वास्ता. तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं. तो इट इज अ लाइक यू नो इट इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी बेसिकली स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट, है ना, तो अगर मैंने आपको बोला यू हैव टू गो फ्रॉम योर होम टू स्कूल, है ना, तो आपका रेट ऑफ रीचिंग डिपेंड करेगा दैट बाय व्हिच स्पीड यू आर मूविंग टू योर स्कूल, है ना, आपको कितना देर लग रही है. तो आपको कितना देर लग रही है डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक दैट यू विल बी गेटिंग इन ऑन योर वे. इट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ फास्ट यू गेट रेडी टू गो टू योर स्कूल, है ना, आप अपने स्कूल जाने के लिए कितना रेडी हो जाते हो. व्हाट अबाउट द वेदर व्हिच मींस द ट्रांसपोर्ट यू आर मूविंग, राइट. तो these are the factors that will decide your rate of reaching the school, है ना, आप स्कूल कितना देर में पहुंच रहे हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा. Okay, similarly, when we carried out any reaction, there are certain factors that matters. Acha, you people already study in organic chemistry, so you know this well. While carrying out any of the reaction, just remember the SN1 reaction when we have to do the substitution of any particular group. So how do we do that? If we have to remove a certain functional group and we have to add the another group, then what are the factors that matters? Okay, the substrate, what substrate you have taken, right? How fast the leaving group will go, है ना? How better the nucleophile is, how stable the intermediate is, है ना? So all these factors were there which we have to look around. So similarly, for carrying out any chemical reaction, including the effect of temperature, pressure, concentration, we know that in many of the reactions, nitrogen-containing reactions, smelting, there were temperature that we have to understand, है ना. Some of the reactions occurs at high temperature only. If they will be low temperature, they might occur or might not occur. So temperature is the main factor. Another factor is pressure. Okay, some of the reactions occurs over the normal room temperature, and some occurs just like the absorption kind of thing. That is the palladium carbon reaction, the addition of hydrogen in the presence of palladium carbon. So there you will require pressure as well, है ना. तो वहाँ पे आपको pressure भी चाहिए होता है. If pressure will not be there, the reaction will not occur, right. So temperature conditions we have to look after, pressure conditions we have to look after, concentration तो main factor है. Concentration तो main factor है ना. ये तो हमें पता ही है. तो on the rates and as well as the mechanism by which the reaction takes place. तो इन तीनों के अलावा temperature, pressure and concentration के अलावा the other factor which is very important is basically the mechanism. Just like in the substitution reaction, we have seen that there are so many mechanisms. आपके पास स्कूल जाने का एक ही तरीका है क्या? Do you have only one single way to reach to your school? No, na. So if you will change the mechanism, if rather than going by bicycle, if you will choose your bike, then what will happen? You will reach to your school faster, right. So it also depends upon, ठीक है, if you know that there is a particular way where you might get traffic, तो what you will choose, है ना, आप कोई alternate रास्ता choose कर लेते हो, है ना. तो it also depends upon the mechanism by which the reaction takes place. तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या कंसंट्रेशन पे ही नहीं मैटर करता है, ये मैकेनिज्म पे भी मैटर करता है, that by which mechanism the reactions are taking place, right. Exactly. अब आपको पता है गूगल मैप हमें मल्टीपल रूट्स बता देता है. ओके, तो नाउ अब हमें ये पता चल गया कि जो रिएक्शन है वो किसी भी स्पीड से हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अल्टर करते हैं. तो नाउ लेट्स डिस्कस दैट हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. अगर मुझे पता करना है दिस इज सो एंड सो रिएक्शन एंड इन हाउ मच टाइम पीरियड दिस रिएक्शन विल अकर, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड क्या मैं पता कर सकती हूँ, राइट. जैसे कि मान लेते हैं वी हैव टू डू द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, है ना. वी व्हेन वी ईट फूड, जब हमारा फूड अंदर जाता है इट बर्न्स, है ना, एंड उससे CO2H2O प्रोड्यूस होता है. तो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा फूड को बर्निंग के लिए, पूरा डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है ना, तो जनरली वी सेज ना कि 4 to 5 आवर्स हमारी बॉडी लेती है हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए, राइट. सो दिस इज द टाइम व्हिच इज बीइंग टेकन फॉर द रिएक्शन टू अकर. सो ऑन व्हाट बेसिस वी हैव एनालाइज्ड दैट देयर विल बी 4 to 5 आवर्स, बिकॉज़ डेफिनेटली एवरी रिएक्शन अकर्स एट अ पर्टिकुलर रेट, है ना. तो उसके बेसिस पे तो कैसे पता करेंगे. तो गाइस द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, समझ यू हैव टू रिवाइज बट नॉट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है. मुझे इस चैप्टर में आपसे कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है. तो अभी के लिए इट्स ऑल ओके. Now let's have a look. Rate of chemical reactions defined as the change in concentration of a react or product in a particular time interval. So what do you mean by rate of chemical reaction? मैंने देखा कि let's take an example of paneer. Have you ever seen that is milk is converting into paneer or cheese, whatever you say? आपने मिल्क को चीज में कन्वर्ट होते हुए देखा है. ओके, तो बेसिकली वो हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज बीन डिफाइंड. इट इज बीन डिफाइंड एज कि मैंने आपसे कहा 5 मिनट में, 5 मिनट बाद आई हैव लुक आफ्टर कि जैसे जो भी कुछ आपने किया, यू वर हैविंग अ मिल्क, यू स्क्वीज द लेमन इनटू इट एंड देन इट स्टार्ट लाइक सेपरेटिंग आउट. ओके, सो आई हैव जस्ट गिवन यू अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल व्हिच इज 5 minutes एंड आई सेड ओके इन 5 minutes हाउ मच पार्ट हैज बीन सेपरेटेड. Okay, तो in a particular time period, that could be 1 second as well, that could be 1 minute as well. Okay, per minute भी हो सकता है ना, कि हर एक मिनट में कितना पार्ट सेपरेट हो रहा है. तो in a particular time period, जैसे in a particular time interval, let's say I have given you 1 minute, ठीक है. In every 1 minute we will see that how much precipitation is occurring, how much precipitation is happening, ठीक है. तो precipitation, what do you mean by that? The conversion of reactant to product, right. So either the loss of reactant or the formation of product. Anyway we can say ना कि 1 मिनट में कितना reactant डिकम्पोज हुआ, मतलब उसमें से कितना मिल्क था, how much amount of milk has been like कितना कम हो गया और कितना प्रोडक्ट बन गया, है ना. So this can be understood in any of the ways. So this can be defined as the change in concentration of a reactant or product in a particular time interval, कि उसकी concentration में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है. अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप 1 मिनट बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन और हो गया, फिर आपको पता चलेगा थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन और हो गया. ओके, सो नाउ क्या एवरी रिएक्शन इज दिस हैपेंस विद एवरी रिएक्शन दैट अगर कोई रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है तो वो सेम अमाउंट में होगी आफ्टर एवरी मिनट? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. आप जब शुगर सॉल्यूशन लेते हो तो व्हाट यू ट्राई टू डू, यू हैव टेकन अ वाटर, तो वाटर विद शुगर ये आपस में मिल जाएंगे, इट विल गेट डिसॉल्व. तो आपने क्या देखा कि शुरू शुरू में रिएक्शन बहुत फास्ट स्पीड से होती है एंड देन आफ्टर रिएक्शन में जो स्पीड है, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन वो कम भी हो सकता है ना. तो इट टोटली डिपेंड्स, है ना. तो हम ऐसा नहीं कह सकते. चलो, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, है ना, कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना रिएक्टेंट कम हुआ या कितना प्रोडक्ट बना. सो आई कैन से दैट आई कैन से द सेम थिंग इन दिस फार्मूला, दैट इज dc by dt, दैट इज योर टाइम इंटरवल. d व्हेनेवर आई एम चूजिंग राइटिंग d इज अ स्मॉल चेंज. ओके, मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ा तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट का घटा होगा या प्रोडक्ट का बढ़ा होगा. ओके, सो एनी ऑफ द थिंग विल हैपन. सो एट अ स्मॉल चेंज t, what will be the decrease in concentration of a reactant or what will be the increase in the concentration of a product.
Okay, so that is dc by dt. Or I can say that if I want to look over a major change, a large change, है ना, जैसे आपने देखा if we are doing a brown ring tester, तो in the brown ring tester we have seen कि जो भी हमारा नाइट्राइट आयन था, it is being converted into the NO2, है ना, जिसकी वजह से हमें ब्राउन एक आयरन का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है. तो that is a small change, है ना. आप if you are carrying out an experiment in a very very small concentration, थोड़ा बहुत लेके आप करो, तो that is a small change, है ना. माइक्रोसेकंड्स में आपको मेजर करना पड़ेगा. But if you are talking about the conversion of milk to cheese, then it is a large change, है ना. We can even see very easily by our naked eyes कि कितना कितना हो रहा है ना. तो there could be a large change. तो जब भी कोई बड़े चेंज की हम लोग बात करते हैं, we use this delta. हम वहाँ पे ये डेल्टा यूज करते हैं. So for a small change I can use either d, or for the major change I will be using delta, that is capital change. Okay, तो और that is delta of concentration नहीं समझ सेम केस हो सकता है. तो डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम, या फिर इफ इट इज अ गैस, तो गैस का कंसंट्रेशन होता है क्या? Gases can be measured in the concentration terms, no. So this can be measured as per pressure only. So dp by dt or the number of gaseous molecules, है ना. तो जो हमारी gases होती हैं उसमें number of gaseous molecules भी तो we can consider, no, rather than या तो pressure देख लो या number of gaseous molecules we can consider. Delta means change and dc by dt is differentiation. Mitlesh, yeah, this is differentiation. Okay, but what is differentiation? Differentiation क्या होता है? Small change को find out करना. To find out a small change. Okay, और integration क्या करता है? Initial to final सबको ऐड कर देता है, right? सबको ऐड कर देता है. तो here we are finding out a small change. Okay, so that is dn by dt. अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने लिखा 0.5 और एक है आपके पास 0.1, तो इसमें कितना बहुत कम चेंज है ना. तो here this small change will be measured written by d. लेकिन अगर मैंने आपको बोला it is 50 and it is 1, तो ये क्या हुआ? It is a major change, delta, है ना, बहुत बड़ा चेंज है this way. ठीक है. Now the unit will be, what will be the unit? What is the unit of concentration? That is moles per liter. Moles per liter divided by time. Time is second. तो क्या यूनिट हो जाएगी? Moles per liter per second. The rate of chemical reaction is basically the moles per liter per second. Okay, or if you are considering the pressure, so it will be, rather than moles, it is atm per second, and if you are taking moles over there, okay, then it will be moles per second. Clear? Now average rate and the instantaneous rate. Average rate होता है कि जैसे कि आप आगरा से लखनऊ गए, ठीक है, you have drive from आगरा to लखनऊ, तो it was a long journey, है ना, कुछ 5-7 घंटे की जर्नी थी, 5-7 आवर्स की जर्नी थी. तो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग आउट, यू विल बी फाइंडिंग आउट द एवरेज रेट, कि मेरा जो गाड़ी है वो एक उसमें उसका एवरेज ये निकला आज, है ना, उसकी एक एवरेज स्पीड ये निकली. तो इफ यू आर टेकिंग ओवर अ लॉन्ग इंटरवल, तो अगर आप किसी चीज को लंबे टाइम इंटरवल पे देखते हो, तो दैट इज अ एवरेज रेट, उसको एवरेज रेट कहा जाता है. ओके, तो दैट इज रेट तो अल्टीमेटली वही रहेगा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टी. ओके, तो ये भी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टी, बट मैं आपको इतना डिफरेंस बता रही हूं. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट? तो आपने देखा होगा ना दैट मेनी ऑफ द पीपल सेज कि गाड़ी का एवरेज इतना आया, कि इट वाज 12 किलोमीटर पर आवर का के एवरेज दिया आज गाड़ी ने, माइलेज व्हाटएवर यू से, है ना. तो बेसिकली एवरेज स्पीड ये रही कि योर कार कुड राइड फॉर लाइक 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर ओनली, है ना, एक घंटे में आप 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी खींच ली थी. तो एवरेज स्पीड आपकी ये रही, है ना. तो देयर वी यूज वर्ड एवरेज. लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क टू चीज, है ना, तो वो तो एक स्मॉल इंटरवल में हो रहा है ना. कितना देर लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, है ना. तो अगर किसी स्मॉल इंटरवल के लिए बात किया जाता है तो बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट. हाँ, उसी मोमेंट पे, है ना. ऐसा नहीं है कि अभी बात कर रही हो फिर मुझे 2-3-4 घंटे बाद बात करना है. तो व्हेनेवर देयर विल बी स्मॉल इंटरवल की बात करेंगे तो वी विल बी कॉलिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, बस इतना ही है इसके बारे में, और कुछ नहीं है. अब यहाँ पे समझते हैं. तो व्हाट इज सेड कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना. तो इफ आई एम कन्वर्टिंग मिल्क टू चीज, द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क विल डिक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ चीज विल इंक्रीज, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रही हूँ फॉर द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का क्या होगा? तो रिएक्टेंट्स अगर मेरे पास है, लेट्स से a + b गिव्स यू c + d, तो a + b क्या करेंगे? ये डिक्रीज होंगे, है ना. तो इनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था एट दिस पर्टिकुलर टाइम 0. सी नॉट, व्हेन वी यूज दिस नॉट after electrochemistry and the solution chapter, you know this well, whenever we are writing O means pure state, exactly. So means at the pure state we are just having a plus b because there is no c and no d, है ना. अभी तो हमारे पास सिर्फ a b है, so we are having the maximum concentration of a plus b. So we are having a maximum concentration of a plus b, right. So now slowly when the reaction will occur a and b decreases. So what is happening over a particular certain period of time? Here the concentration of a decreases and it comes near to zero, है ना. धीरे धीरे near to zero हो जाएगा. क्या this can be negative? क्या ये ग्राफ ऐसे करके नीचे भी जा सकता है? नो, नहीं जा सकते हैं, है ना. ओके, अच्छा, डू वन थिंग गाइस, आप लोग जल्दी से इसको ड्रॉ करो, ठीक है. ड्रॉ दीस टू स्लोप्स एंड दिस इज द स्लोप फॉर द, इट कैन नेवर बी, मतलब इट कैन नियर बी इक्वल्स टू ऑप्शन, है ना, क्लोज टू जीरो बट नेग्लिजिबली टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली, है ना. बट हम एकदम ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, है ना. तो यू जस्ट ड्रॉ दीस टू प्लॉट्स, ठीक है. आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स. ओके, जल्दी से इसको ड्रॉ प्लॉट करो इस पूरे को. ओके, कमिंग.
चलो, so let us talk about the concentrations. Okay, so what we were talking about, if let me see, initially I was having the C naught concentration, right? So initially when the reaction will start, I will be having the C naught as the concentration, and over a time t, the concentration decreases, right? So as the time is increasing, the concentration of reactant is decreasing. So this R represents for the reactants, right? C naught नहीं है, C naught बोलते हैं. In general we say C naught. हम इसे C0 ना बोल के we say C naught. अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है. So when we are talking about the product, तो product का concentration initially क्या है? इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है ना. तो इनिशियली एट अ पर्टिकुलर टाइम जीरो, जीरो पे तो जीरो है, एंड ओवर अ सर्टेन टाइम टी, जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ना शुरू होगा, देयर विल बी इंक्रीज. तो दिस इज योर प्रोडक्ट पी. तो क्या हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी इज इंक्रीजिंग, एंड उसके बाद जब सारा का सारा रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम कांस्टेंट. अब ऐसा तो है नहीं कि और इंक्रीज करता जाएगा. इफ द रिएक्टेंट्स विल फिनिश ऑफ, तो क्या प्रोडक्ट को मैं ऐसे बनाऊंगी कि इंक्रीज करता जाएगा. नो, आई कांट डू दैट, है ना. तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा. फिर ओवर एट पर्टिकुलर टाइम टी आपको पता चलेगा कि अच्छा प्रोडक्ट हमारा सारा इतना ही रहेगा, अब प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑल द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. ओके, नाउ दिस इज वन थिंग. नाउ वी कैन डिटरमाइन दीस रिएक्शंस एट एनी टाइम टी. मुझे पता है कि ये रिएक्शन चल रही है और यहाँ जाके मेरे को प्रोडक्ट मिलने वाला है, बट आई वांट टू नो दैट एट एनी टाइम टी. तो किसी भी टाइम टी पे मेरा जो कंसंट्रेशन है वो कितना है. सो हाउ कैन आई डिटरमाइन, ओके, चूज एनी टाइम. यू वांट टू नो एट t3 t2, कब पता करना है आपको. इफ यू वांट टू डिटरमाइन एट t3, तो t3 पे से लाइन ड्रॉ करो एंड जस्ट मार्क करो, यू विल बी गेटिंग, ओके, एट टाइम t3 आई विल बी गेटिंग दिस as ct. सो ct इज व्हाट, ct इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t. t टाइम पे मेरा कंसंट्रेशन ct था. ओके, तो अगर मैंने आपसे कहा, ओके, डू लेट मी नो दैट हाउ मच इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t2, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल बी डूइंग, ओके, टाइम t2, ओके, आई हैव ड्रॉन अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस मच. सो दिस इज माय ct एट t2. तो एट टाइम t2 दिस इज माय ct2. समझ आ गया, है ना. तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन, कि इस टाइम पे मेरा कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, इस टाइम पे मेरा कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, है ना. सो एट एनी टाइम यू कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन. नाउ हियर आल्सो वी नो दैट एट द टाइम इज इंक्रीजिंग, द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग. सो व्हेन एट एनी टाइम t I want to determine, okay, how much is the product, then you will say ct. Okay, if I'm saying, okay, at time t1 how much is the product, so at time t1 you will draw this kind of vertical line, and this is intersecting at this particular point, you will say this is ct1. I will be saying, okay, at time t2 what is the concentration, then what you will be doing, you will be drawing a straight line, and this is intersecting at this particular point, you will be saying, okay, this is ct2. Okay, so this is the concentration at time t2. Now is this clear, right? हाँ जी सुयश, इन द सेकंड ग्राफ सी नॉट इज इन ओरिजिन, क्योंकि इनिशियली तो मेरे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो है ना. ओके, सो इन द केस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स वी आर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, नहीं समझ, वी कांट से दैट. अच्छा एक बात बताओ, व्हेन यू कन्वर्ट योर मिल्क टू चीज, क्या जितना आपके पास मिल्क होता है उतना ही कंसंट्रेशन का आपके पास चीज बनता है क्या, डू लेट मी नो, क्या उसका कंसंट्रेशन सेम रहता है क्या, नहीं. तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जितना, दिस यू ऑलरेडी नो, यू नो द मोल कांसेप्ट चैप्टर, आपने मोल कांसेप्ट पढ़ा है ना. तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है कि ना, नीदर क्वांटिटी वाइज नॉट मोल वाइज. ना तो आप नंबर ऑफ मोल्स को कह सकते हो कि जितने रिएक्टेंट्स के हैं उतने ही प्रोडक्ट के होंगे, ना आप क्वांटिटी में कह सकते हो कि जितना मास रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट का होगा. ओके, अ रियल लाइफ एग्जांपल इज देयर फॉर यू, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, है ना. नहीं समझ, ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं होंगे. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्शन, व्हिच केमिकल रिएक्शन इज दिस, किसको रिएक्ट करने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, है ना. अब जैसे आपने देखा है कि व्हेन यू यूज N2 and 3 moles of H2, then only there is a formation of 2 moles of ammonia. तो यहाँ तो आपने 4 moles लिए, but here you are getting only 2 moles. So how could you relate them? How could you relate them? नहीं ना. देखो मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द सी नॉट, ठीक है. तो सी नॉट पे तो जीरो कंसंट्रेशन होगी. तो व्हेन द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो मैं थोड़ा सा जीरो से, इफ द टाइम इज ग्रेटर देन जीरो पे, तो मैं देखूंगी टाइम जीरो है, मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है. तो व्हेन वी वांट टू इनिशिएट द रिएक्शन, तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के बाद कुछ तो जीरो प्लस होगा ना. ओके, हाउ कुड यू से इट इज जीरो, है ना. तो जब रिएक्शन इनिशिएट होगी, इनिशिएट कब होगी, व्हेन देयर इज अल्टीमेटली कुछ भी मतलब 0.1 ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना, पर बनना तो चाहिए ना. तो देयर मस्ट बी अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तभी तो हम कहेंगे दैट रिएक्शन हैज बीन इनिशिएटेड, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है. जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, आप गियर नहीं डालोगे, आपकी गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी, मैं कैसे कह सकती हूँ कि रिएक्शन होनी शुरू हो गई है. नहीं ना. तो आपको एक बार गियर डालना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट योर कार, देन ओनली एट अ पर्टिकुलर टाइम वी विल से दैट ओके यू हैव मूव्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस, है ना. फिर क्या होता है, आधे घंटे बाद आपके पास मम्मा का कॉल आएगा दैट वेयर यू रीच्ड, फिर 1 घंटे बाद कॉल आएगा वेयर यू रीच्ड, फिर 1.5 घंटे बाद कॉल आएगा वेयर यू रीच्ड, राइट. तो हर टाइम इंटरवल पे एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम टी योर मम्मा विल कीप आस्किंग यू दैट कहां तक पहुंचे, है ना. एंड देन आफ्टर एट अ सर्टेन टाइम, अच्छा तो आपको पूरा रिएक्शन करने में, मतलब आपको पूरा रेट ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगा. हाँ, टू इनिशिएट द रिएक्शन हर्ष, इसीलिए तो डालते हैं, है ना, रिएक्शन शुरू करने के लिए. 1 घंटे में 15 बारी कॉल. चलो, तो बढ़ते हैं आगे. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे. वी नो दैट रेट इज इक्वल्स टू, रेट हमने क्या पढ़ा था, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, है ना. तो वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू डीसी बाय dt, और वी कैन से दैट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. सो दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन. सो चेंज जब भी हम लोग बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही करते हैं ना. फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं ना. तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, अगर मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, तो फाइनल क्या है, ct, और इनिशियल क्या था आपका कंसंट्रेशन, C0. Very nice. So CT minus C0. अच्छा, this is change in temperature, change in time. So time is also final minus initial. Final मतलब मेजर टाइम, है ना, बाद का टाइम. तो at time t, और ये इनिशियली क्या था टाइम आपका, जीरो था, दैट इज t minus 0. इज दिस क्लियर. तो हमारा ये क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस, मैंने why I have kept this minus over there, there is a certain reason, because the reactant is decreasing, है ना. तो this rate of reaction तो नीचे जा रही है ना, डिक्रीज हो रहा है ना. So this negative is showing because I have taken this for the reactant, मैंने reactant के लिए लिया है, and I know that there is a negative flow, that's why I'm saying it is minus delta c by delta t. ठीक है. नाउ प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, है ना, और इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप इसे क्या लोगे, यू विल बी टेकिंग पॉजिटिव. तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यू हैव इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज वी हैव टू डू फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे फाइनल क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम t, फाइनल क्या है आपका कंसंट्रेशन ct
माइनस इनिशियली क्या था आपका कॉन्सेंट्रेशन C0 अपॉन फाइनल पे आपका टेंपरेचर, आप टाइम कितना ले रहे हो, मैं बाबा टेंपरेचर करती हूँ उसे, टाइम, दिस इज टाइम, ओके, तो टाइम T था एंड माइनस 0, सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस का dP by dt. एनी डाउट? अच्छा, व्हाई आई हैव रिटन P ओवर देयर, बिकॉज़ दिस इज फॉर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है इसमें, बिकॉज़ वी आर डूइंग दिस फॉर द स्मॉल चेंज. अब हम जब रिएक्शंस करा रहे हैं केमिस्ट्री की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल चेंज. हमें कौन सा रास्ता ट्रैवल करना है, हमें कौन सा आगरा से लखनऊ जाना है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ तो रिएक्शंस होनी है, तो दे विल बी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए हम लोग स्मॉल ले रहे हैं. आप चाहो तो कैपिटल भी ले सकते हो. हाँ जी, डेल्टा फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि देयर यू ट्रैवल नो, वहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कि प्रोजेक्टाइल को भेजा, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ जा रही है, समझ लो. दैट्स हाउ. अच्छा, तो अब अगर मेरे पास ये रिएक्शन है कि A + 3B गिव्स यू 5C, तो आप मुझे बताओ कि A का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. A का, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रेट. अब हमने ये पढ़ लिया कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन. अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए एक्सप्रेस करना है उसका रेट, तो हाउ कुड आई एक्सप्रेस इट इन अ सिंगल एक्सप्रेशन. मतलब मैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू सब बताना चाहती हूँ कि A इतना डिक्रीज हो रहा है, B इतना डिक्रीज हो रहा है, C इतना इंक्रीज हो रहा है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट बाय फॉलोइंग अ वन सिंगल एक्सप्रेशन, एक सिंपल एक इक्वेशन लिखते थे ना. जैसे क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पढ़ा था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल इन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि हमें सारी बात समझ में आ जाए, कहां ऑक्सीडेशन, कहां रिडक्शन, व्हिच इलेक्ट्रोड वी हैव टेकन, व्हिच एनोड वी हैव टेकन, है ना, सेल नोटेशन. हाँ, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दो, जस्ट बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी विल गेट टू नो अबाउट द रेट ऑफ एवरीथिंग. रेट ऑफ A एज अ रिएक्टेंट, रेट ऑफ B एज अ रिएक्टेंट, रेट ऑफ C एज अ प्रोडक्ट. मुझे एक एक्सप्रेशन देख के सबकी खबर मिल जाए, है ना. यू आल्सो वांट ना कि मैं एक क्लिक करूं और मुझे पता चल जाए, आई गेट टू नो अबाउट द लोकेशन कि मेरे मेरे मम्मा-पापा कहां पर हैं, है ना. जस्ट वो मुझे एक क्लिक, एवरीथिंग अ क्लिक अवे, है ना. हमें हर चीज़ एक क्लिक क्लिक की दूरी पे चाहिए, राइट. तो सिमिलरली हमें चाहिए कि एक ऐसी एक्सप्रेशन हम बता दें जिसके बेसिस पे वी विल गेट टू नो अबाउट द रेट ऑफ A एज़ वेल, रेट ऑफ B एज़ वेल एंड रेट ऑफ C एज़ वेल. तो हमें पता है कि A तो घट रहा है, B भी घट रहा है, C बढ़ रहा है ना. तो बिकॉज़ दीस आर द रिएक्टेंट्स, तो दे आर डिक्रीजिंग. अच्छा, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? नो, दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे. सॉरी. सो दिस इज अ सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट. तो क्या होगा, डेफिनेटली फॉर A एंड B वी विल बी हैविंग अ नेगेटिव साइन, राइट. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जितना जल्दी A डिकम्पोज होगा या जितना जल्दी B डिकम्पोज होगा, उतना जल्दी तो C बनेगा, है ना. तो A का घटना C के बढ़ने पे तो डिपेंड करता है ना. तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस एज अ इक्वल साइन, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती ना कि नहीं बस A डिकम्पोज हो रहा है, C तो बन ही नहीं रहा है. कैन वी से दिस कि A भी कम हो जा रहा है, C तो बन ही रहा है, अरे तो फिर कहाँ जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना. सो इफ AB इज गेटिंग डिकम्पोज, देन डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड, है ना. तो यू नो, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना. अगर कुछ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रहा होगा, डेफिनेटली बदल रहा होगा. तो दैट्स हाउ वी आर सेइंग दैट कि A के लिए वी हैव यूज्ड माइनस, माइनस, एंड व्हाई वी हैव केप्ट इक्वल टू, समझ आया, हमने इक्वल टू रखा है ना. तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1, है ना, ये 1 मोल ऑफ A, तो दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस का dA by dt. ओके, दैट इज 1 dt. दिस इज माइनस का, दिस इज 3B, दैट इज 3 मोल्स, है ना. तो वी विल बी राइटिंग माइनस का 1/3. या आई न्यू दैट समवन वुड आस्क व्हाई. ठीक है, व्हाई का भी आंसर दूंगी, पहले करो एक बार लिखो. सो दिस इज द लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन. ये आया कैसे, इसकी बात करेंगे अभी. ठीक है, पहले ये दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, इसे क्यों लिख रहे हैं, इस पे बात करेंगे अभी. सो दिस इज 5C, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/5 dC by dt. क्लियर? हाँ जी, चलो अगला आगे बढ़ते हैं. शिट, लिखना बहुत आसान है, जस्ट गिव मी अ व्हाइल. Now let's see how we are getting it. Okay, chalo. So if we were having A plus 3B gives you 5C. So if I'm saying that rate of disappearance of A is minus ka dA by dt, right? If I'm saying rate of disappearance of B, you will be saying it is minus ka dB by dt. Minus kahan dB by dt, because it is minus, and the concentration of B divided by the concentration of T, that is the change in time, and these are disappearing and C is appearing, है ना. So rate of appearance of C will be positive because it is appearing, okay, or forming. So this will be dC by dt. This much is clear. राहुल, इफ समथिंग इज गेटिंग डिकम्पोज, तो जो चीज खत्म हो रही है उसके लिए माइनस, एंड इफ समथिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो जो भी कुछ बन रहा है ना, या फॉर्म हो रहा है या अपीयर कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए पॉजिटिव. गॉट इट. चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना है कि हाउ वी विल अंडरस्टैंड इट. ये तो हमने समझ लिया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ये है. नाउ व्हाइल राइटिंग द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ एनी कंपोनेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नेवर कंसीडर्ड. क्या मैंने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर किया है? नो, दे विल नेवर बी कंसीडर्ड. तो जब हम लोग रेट की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को कोई मतलब नहीं होता दैट व्हाट इज योर कि आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है. ओके, तो जब आप अपना अपना रेट बताते हो कि मैम मम्मा आई एम ट्रैवलिंग विद 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूं, है ना, दिस इज माय एवरेज स्पीड, तो डज इट रियली मैटर्स कि आपको कितना स्पीड से चलना चाहिए था, दैट इज इंडिपेंडेंट. नो, है ना, कि नहीं बेटा 2 दिन पहले पापा गए थे, वो तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए थे, व्हाई यू ट्रैवलिंग विद 80, यू जस्ट मस्ट डू. तो ऐसा तो कुछ नहीं होता ना. तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीस लाइक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो किस रेशो से रिएक्ट करना चाहिए. ठीक है, बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट, हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं. ओके, चलो अब बात करते हैं कि हमने कहा कि अब थोड़ा रिलेट करते हैं. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, अगर मेरा बी खत्म हो रहा है तो सी बन रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव, है ना, कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, अगर मेरा बी का डिसअपियरेंस हो रहा है, तो कितना सी बन रहा है, तो कितना ए डिसअपियर हो रहा है. चलो एक टर्म्स में बताओ. मैंने कहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी मेरा डिसअपियर हो रहा है. तो बी डिसअपियर होगा तो अपने साथ ए को भी डिसअपियर करेगा, ए के साथ ही तो रिएक्ट करना है उसे, तो ए भी आपका डिसअपियर होगा. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? क्योंकि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, राइट. तो बी जितना डिसअपियर हो रहा है उसका उसका 3 गुना ए को डिसअपियर होना पड़ेगा.
राइट, टू मेंटेन अ बैलेंस, तभी तो सी बनेगा, है ना। तो आई एम सेइंग दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट, ओके। तो व्हेन यू टेक 1 मोल ऑफ ए, यू हैव टू टेक 3 मोल्स ऑफ बी। अच्छा, कांट अंडरस्टैंड, तो कांट अंडरस्टैंड वाले लोग मेरे को वापस से सुनना एक बार, यहाँ पे देखना। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, तो कौन ज्यादा है, बी इज ग्रेटर और ए इज ग्रेटर, ये बताओ मुझे। बी और ए में एज पर दिस इक्वेशन, ये सब मत देखो, डोंट डू दिस, इसको देखो, बी इज ग्रेटर ना, ध्यान से देखो, क्योंकि बी इज इक्वल्स टू 3a, इसका क्या मतलब हुआ, बी ज्यादा है ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे तो बी इज ग्रेटर देन ए है, देखो जरा, समझ पाए वाई, मतलब बी को 3 गुना, जस्ट ट्राई टू रीरीड द सेंटेंस, बी को 3 टाइम्स डिसअपियर होना पड़ेगा कंपेयर टू ए, द वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर, ए की वैल्यू तो b by 3 है, ए तो बहुत कम है, इफ यू विल लुक लाइक दिस तो ए तो बहुत कम है, ए तो 1/3 ही रहेगा बी का, बट b is 3a, that is 3 times of a, तो b को 3 गुना डिसअपियर होना पड़ रहा है, ठीक है। अगेन वापस से देखो, जिसको नजर नहीं आ रहा दोबारा देखो। अच्छा, तो अगर मैंने याद है इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर वी हैव स्टडीड दिस T20, T20 में क्या मतलब था, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कौन से ज्यादा होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्यादा होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ग्रेटर देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नो, टेट्राहेड्रल कितने होते थे, टेट्राहेड्रल वर 8 इन नंबर एंड ऑक्टाहेड्रल वर 4 इन नंबर, समझ आया, तो ऐसे लिखते थे ना कि टेट्राहेड्रल इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी आपका जितना कितना डिसअपियर हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ए 1 जा रहा है तो बी 3 जा रहा है, नाउ अंडरस्टूड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यो, चलो वेरी नाइस, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी था माइनस डीबी बाई डी टी, सो आई कैन राइट माइनस का डीबी बाई डी टी, नाउ यू जस्ट सेड कि इट इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो 3 टाइम्स, 3 से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, माइनस का डी बाई डी टी, तो 3 माइनस का डी बाई डी टी, क्लियर। नाउ इफ यू आर रिलेटिंग इट विद सी, तो आपका सी और ए में क्या रिलेशनशिप है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, तो C is forming 5 times than A, so C is greater than A, C is greater than A, so I can write that the rate of appearance of C, rate of appearance of C is 5 times, the rate of appearance of C is 5 times the rate of disappearance of A, rate of disappearance of A, right, समझे, C तो ज्यादा है, C तो 5C बन रहा है, C is greater than A, no, तो C here also C is greater than A, C is 5A, C is equals to 5A, this simply means that C is greater than A, है ना, तो here the rate of appearance of C क्या होता है, rate of appearance of C is dC by dt, I can use dC by dt, now rate 5 का multiply कर दिया, rate of disappearance of A, rate of disappearance of A was minus का dA by dt, put minus का dA by dt, so these are the two relationships, और इन दोनों में dA by dt है, okay, so we can equate them, and similarly we can find for the B and C, B C के लिए भी find कर सकते हैं, what is the relationship between B and C, B और में और C में क्या relationship है, so I can say that 3B gives you 5C, or I can say that B gives you 5 by 3C, मैं ऐसा कह सकती हूँ, 3B gives you 5C, or I can say that gives you 5 by 3C, तो rate of disappearance of B, कितना होगा, will be the 5 by 3 times of rate of appearance of C, तो कितना होगा, अब आप इसे 3 by 5 करोगे, 5 by 3 करोगे, थोड़ा सोचो, B और C में रिलेशनशिप है, तो B is greater, no, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, B is greater, है ना, तो क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B is equals to 3 by 5 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, हाँ, C is greater, yes प्रथम, C is greater, अरे वापस देखो, B smaller, this is 3B gives you 5C, वापस देखो, 3B gives you 5C, है ना, तो बेसिकली आपका जब 3 मोल्स डिसअपियर होते हैं तो 5 मोल्स ऑफ C बनते हैं, तो बेसिकली आई नो दैट कि B कम डिकम्पोज हो रहा है और C ज्यादा बन रहा है, तो हियर B is less than C, C बड़ा है, तो C बड़ा कब होगा, when the C will be greater, तो this is what we have to do, no, rate of disappearance of B is equals to, जितना जल्दी B आपका डिसअपियर कर रहा है, this is 3 by 5, तो as per this ये देखो क्या हो गया, B कम हुआ ना 3 by 5, और अगर मैं इसे 5 by 3 कर देती तो B बड़ा हो जाता, if rather than doing 3 by 5 over there, अगर मैं इसे 5 by 3 कर देती तो B बड़ा हो जाता ना, B will be greater than C, no, जबकि मुझे पता है C is greater than B, right, so what we will be writing, that is the rate of disappearance of B is equals to 3 by 5 the rate of appearance of C, है ना, तो हमें पता है जो B है वो कम है, that is 3 by 5 है, so how much is B, B is 3 by 5, okay, so 3 by 5 rate of appearance of C, so the rate of disappearance of B is minus का dB by dt is equals to 3 by 5 dC by dt, is this clear, okay, तो अब क्या हम इक्वेट कर सकते हैं, can we equate these equations, so from 1 and 3 equation what comes, from 1 and 3rd equation minus ka dv by dt minus ka dv by dt, you can equate these two reactions, this comes out to be thrice of minus ka dv by dt is equals to 3 by 5 dc by dt, ये आएगा minus का dv by dt is equals to thrice of this is equals to 3 by 5 of dc by dt, just equate these two equations and इसको summarize करने की कोशिश करो, a b c के टर्म्स में लेकर आओ, so in the final rate expression I want a as well, I want b as well, I want c as well, तभी तो मुझे हर किसी का रेट पता चलेगा of every element, the rate of disappearance and the appearance of every element, do it, खुद से करो, minus is only for the disappearance and appearance, समझ, minus का मतलब सिर्फ और सिर्फ appearance और disappearance है, that's it, वो आपने जहां जहां लगाया वहीं रखो, ओके देखो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ, आप खुद बताना,
आपने यहाँ पे क्या लिया था, Ct माइनस C0, यही लिया था ना, Ct माइनस C0। तो Ct इज दिस, C0 इज दिस, बिकॉज वी हैव डन फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा रेट के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, राइट। तो फाइनल हमारा क्या था, ये था Ct माइनस इनिशियल C0। अच्छा, दोनों में से कौन बड़ा है, तो Ct माइनस C0। तो हियर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ C0 इज ग्रेटर। Ct कैसे बड़ा हो गया, जरा देखना, कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है, तो हु इज ग्रेटर, C0 इज ग्रेटर, C0 इज ग्रेटर देन Ct। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। अब समझ में आ गया कैसे आएगा नेगेटिव, तो ऑलवेज दिस हैज टू बी नेगेटिव। तो हम तो जनरलाइज ले रहे हैं ना, तो दिस हैज टू बी नेगेटिव। अच्छा, जस्ट लुक आफ्टर दैट, यहाँ पे भी वी हैव टेकन रेट इज ऑलवेज फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। रेट हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल को माइनस करके निकलती है। तो फाइनल यहाँ पे क्या था, टाइम t Ct था, ये इनिशियल क्या था, C0 था। ओके, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। ओके, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, Ct इज ग्रेटर देन C0, Ct इज ग्रेटर देन C0, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है, वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव स्लोप। वेल वेल अंडरस्टूड, समझ आ गई कहानी। Okay, so it's derived that for the reactant it has to be negative and for the product it has to be positive. तो ये होगा ही होगा। Okay, so now we are equating these reactions. So from 1 and 3 what we have determined, minus का dV by dt is equals to thrice of minus dA by dt and 3/5 of dC by dt. देखो जरा ये लिख के। Now what you can do is, this is having A B C तीनों टर्म्स आगे देखो, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से मेरे पास तीनों आगे ना, A B C तीनों आगे ना। ओके, अब हाउ वी कैन लाइक इसको कैसे इजी करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि ना एक काम करते हैं इसमें, इस पूरे रिएक्शन को ना क्या करते हैं, क्या किया हुआ है इसमें, माइनस का सिंपल, पहले मैंने इसे रीअरेंज किया है, यहाँ पे a को बचा दिया है, b को यहाँ बचा दिया है, c को यहीं रखा है, ठीक है। आई हैव जस्ट सिंपली रीअरेंज्ड a b c के टर्म्स में। हियर वी आर हैविंग इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, जस्ट लाइक हियर आल्सो वी वर हैविंग इक्वल्स टू। तो व्हेन वी हैव इक्वेट दीस टू रिएक्शंस, the 1 and 3, there will be a sign of equal only, ठीक है, समझ आ रहा है इक्वल का साइन क्यों आ रहा है। हाँ जी, and then we are just divided by 3, so divided by 3, divided by 3 and divided by 3 cancel, and this is also cancel, so comes out to be this। अब जरा मैच करो, this is the same for this reaction, a plus 3b gives you 5c। तो क्या आ रहा है ये, माइनस का da by dt माइनस का 1/3 dv by dt and 1/5 dc by dt। so this has been derived, right? So ultimately you got it that this is the way how we have to write down the rate law expression। तो अब आपको rate law expression जब आएगा तो you need not to derive, you know it's very simple and easy to write, है ना। आपको करना क्या है, how you have to write the rate law expression। so this is an expression, this is not rate of reaction, ये rate of reaction नहीं है, this is an expression है, ये किसी चीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसके थ्रू, है ना, पूरी बात कह रहे हो अपनी। तो this is an expression, so this expression says for a if it is disappearing there will be minus का dA by dt, if this is 3b okay then this is also disappearing, so take negative minus का 1/3, 1 by of this reciprocal and it will be dV by dt is equals to, this is forming, forming means positive, मतलब 1/5 dC by dt, clear। रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो दिस हैज बीन डिराइव्ड। चलो, तो अभी हमें ये समझ में आ गया, रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, वेरी वेरी बेसिक थिंग। एंड व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। अभी कोई ऑर्डर नहीं पड़ा समझ, नो ऑर्डर। व्हाट वर द इनिशियल पॉइंट्स, अभी तो वी हैव नॉट स्टार्टेड विद द ऑर्डर, अभी तो हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, बस अभी तो इतना सा फिनिश किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज रेट लॉ, रेट क्या होता है, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। रेट लॉ क्या होता है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दी अनदर डेफिनेशन, दिस हैज टू बी माइनस का 1/2a, राहुल माइनस का 1/2a। ओके, नाउ व्हाट इज रेट लॉ एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रेट लॉ। तो जब भी हम रेट लॉ की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली वी नो दैट इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, है ना। तो जो भी पिछला वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन था उसमें भी हमने देखा था कि डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, वहां तो हमने कहा कि रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारा रेट लॉ है इसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्डर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दैट वी डू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। सो बेसिकली ये वाला जो हमने अपना जो डेफिनेशन दिया है, दिस इज बीन गिवन एज पर द, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, टेंपरेचर एंड प्रेशर, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म। समझो, अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, बट एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिज्म। सो दिस मैकेनिज्म टेल्स अस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो मैकेनिज्म होता है इससे हमें पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ओके okay, तो इन्होंने कहा कि देयर इज वन मोर फैक्टर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, सो व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच ऑर्डर इज लाइक बाय व्हिच ऑर्डर द रिएक्शन इज अकरिंग। तो हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या बोला है मैम, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कंसंट्रेशन, तो समझ में आता था, ठीक है। ये व्हाट इज दिस ऑर्डर, ओके तो ये ऑर्डर क्या है। नाउ बच्चे समझो, जैसे क्या होता है ऑर्डर्स, पहला चीज, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय मी एंड यू और बाय जस्ट लुकिंग एट एनी सर्टेन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को ऐसे देखने से हम ऑर्डर नहीं बता सकते। सो बेसिकली दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग, ओके। सो बेसिकली वी हैव सीन दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल दैट एवरी मैकेनिज्म वाज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स। जिस मैकेनिज्म को आप फॉलो कर रहे हो उसके नंबर ऑफ स्टेप्स बदल जाया करते थे, किसी में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती थी, इन सम ऑफ द रिएक्शंस देयर वाज द 2 स्टेप्स, इन सम ऑफ द रिएक्शंस देयर वर द 3 स्टेप्स। जस्ट लाइक एक होता है कि मुझे आगरा से लखनऊ जाना है, आई हैव टू गो आगरा, फ्रॉम आगरा टू लखनऊ, तो देयर इज वन सिंगल बस, है ना। एक तो एक रूट ये है कि एक आप डायरेक्ट बस आपकी जाती है, दूसरा रूट ये है, दूसरा मैकेनिज्म ये है, यू कैन गो बाय ट्रेन, यू हैव टू चेंज 2 ट्रेन्स, है ना, आपको 2 ट्रेन बदलनी पड़ेंगी बीच में से। नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन दैट यू कैन गो बाय योर कार, अब डिस्टेंस ज्यादा है तो आप ब्रेक्स ले लेके भी जा सकते हो, यू कैन टेक मल्टीपल ब्रेक्स, 5 6 7 जितना मन किया उतना, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म द नंबर ऑफ स्टेप्स डिफर्स। बताओ,
नंबर ऑफ स्टेप ऑफ द कितने स्टेप में रिएक्शन होगी ये भी बदल जाता है ना, ये भी बदल जाता है। अच्छा, तो डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म, अब देखो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन तो बदल ही जाता है, लेकिन क्या ट्रेन में हमें ट्रैफिक मिलेगा? व्हेन वी विल गो बाय ट्रेन, नो, तो वहां तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ओके, बट इफ वी विल बी गोइंग बाय कार तो डेफिनेटली वहां तो देयर कुड बी अ कंजेशन इशू, है ना। इफ यू आर गोइंग एट द पीक आवर्स तो पीक आवर्स वाला इशू आ जाएगा, है ना। अगर आप मीन टाइम पे चल रहे हो, जब रश होता है तो चल रहे हो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा वाला स्टेप मेरा स्लो है। अगर आप एक जगह लेट हो गए तो ऑफ कोर्स अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए तो लेट हो गए होगे ना। सोचो, किसी भी एक जगह, किसी भी एक स्टेप पे अगर आप डिले होते हो तो आप अपनी फाइनल रिएक्शन के लिए तो डिले हो जाएगा आपका, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला कि मुझे ए से बी बना के दो, बट मैं ए से बी कैसे बन रहा है? ए से पहले x प्लस वाई बन गया, फिर x ने u v w बना दिया, फिर इस u ने z बना दिया, और फिर इस z ने b बनाया। तो मतलब आई एम गेटिंग ए टू बी, बट डिफरेंट मैकेनिज्म। एक आपने क्या किया कि a ने x प्लस वाई बनाया और देन x ने सीधे b बना दिया। तो दिस इज मैकेनिज्म 1, दिस इज मैकेनिज्म 2, राइट। यहाँ पे दिस इज योर स्लो स्टेप एंड यहाँ पे लेट्स से दिस इज योर स्लो स्टेप। तो हमारा जो ऑर्डर होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप। स्टेप्स भी डिफरेंट, मैकेनिज्म अलग, स्टेप्स अलग, राइट। जरूरी तो नहीं है कि वी नो ना SN1 SN2 SNI SN2TH देयर वर डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स, सबका मतलब अलग था, है ना। तो देयर कुड बी नंबर ऑफ स्टेप्स भी हमारे अलग हो सकता है, स्लो स्टेप भी बदल सकता है। तो जो SN2TH मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप था वो SN1 में नहीं था, है ना। तो जो स्लो स्टेप है वो भी बदल सकता है। सो वी हैव टू कंसीडर द स्लो स्टेप। तो ऑर्डर कहां से निकलता है? ऑर्डर निकलता है स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप से। यहां से यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द ऑर्डर। ओके, नाउ यू डू लेट मी नो वन थिंग, क्या ये चीज आप पता कर सकते हो कि कौन सा स्टेप स्लो होगा? या तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट की कि वो कहां से स्लो जाती है। कि जैसे आप व्हेन यू ट्रैवल सर्टेन रूट तो आपको पता चल जाता है ना कि जैसे आपने आगरा टू लखनऊ कई बार ट्रैवल किया है, तो यू गेट टू नो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चल जाता है कि वहां तो डिले होना ही होना है ना। सो यू विल कीप एक्स्ट्रा टाइम विद यू। तो जब आप ट्रैवल करते हो तभी तो आपको आइडिया लगेगा, यू विल बी गेटिंग दैट एक्सपीरियंस। तो जब आपने कोई रिएक्शन पढ़ी हुई है तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें ये वाला स्टेप स्लो होता है ना। तो ये तो चीजें वो हैं कि जब तक जाएंगे नहीं सीखेंगे नहीं, है ना। तो कोई भी नहीं सिखा सकता आपको हाउ टू ट्रैवल इन अ बस अंटिल अनलेस यू वोंट ट्रैवल, राइट। तो हाँ, तो जब तक आप इस एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे किसी रिएक्शन को, हाउ वुड यू गेट टू नो कि कौन से रिएक्शन का कौन सा स्टेप स्लो जाएगा? तो जब हमें पता चल जाता है, करने के बाद आइडिया लग जाता है, तो हम उसका ऑर्डर भी फिर आसानी से बता पाते हैं, क्योंकि द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जैक्टली ऑप्शन पढ़ते तो सब है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे यू वोंट गेट टू नो कि पेपर में कैसा पेपर आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली सौरभ, आप कर रहे हो 10 क्वेश्चन रोज, मैंने बहुत सिंपल बात बताई थी, आई होप यू आर डूइंग, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यू अंडरस्टूड कि हमें ऑर्डर कहां से पता चलेगा? फ्रॉम द स्लोएस्ट। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अभी ऑर्डर कैसे बताएंगे? तो दिस इज द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर एंड रेट इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। सो दिस इज द जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? तो देखो एक बार पढ़ो इस डेफिनेशन को, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। मैंने कहा कि कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्टिव मास के, ठीक है, या फिर द मोलर कंसंट्रेशन के, रेज टू सम पावर, और उसके ऊपर कोई कोई पावर लगी होती है। दिस पावर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। उस पावर को हम क्या कहते हैं? उस पावर को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको लिखा 2a + b gives you p, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर l। क्या l ये है, ये है, ये है? नहीं, l कुछ भी हो सकता है ना। इट इज दिस इज अ नेट रिएक्शन, बट आपको पता है ये तो नेट रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, है ना। तो देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म पे कोई स्लो स्टेप होगा एंड वहां पे कुछ ऑर्डर आया होगा, तो दैट विल बी दिस l। तो ये l क्या है? इसका ऑर्डर है, इस a का, और इस स्टेप, इस रिएक्शन का, इस a के फॉर्मेशन का ऑर्डर है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर m। तो आई एम सेइंग दैट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, आई कैन से दैट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू a की पावर l एंड b की पावर m, राइट। ओके, एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज, a के लिए ऑर्डर कितना है? l है, b के लिए ऑर्डर कितना है? m है। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ? l प्लस m हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल, तो एज पर दिस एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, ठीक है, बट a की पावर l, ठीक है। तो ये l क्या है? तो l कहां से पता चलेगा मुझे इसके लिए कि मेरे पास स्लोअर स्टेप में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आई एम गेटिंग इन द प्रोडक्ट साइड? ओके, सो लेट्स से दिस इज l, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? l विल बी द ऑर्डर। स्लो स्टेप बताते हैं सौरभ, ऑर्डर हमें स्लो स्टेप से पता चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही तो डिसाइडिंग फैक्टर है। जो स्टेप्स फास्ट है वो तो निकल ही जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है जेई के लिए, वो यही तो बताता है। द टॉपिक्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, द टॉपिक्स जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वही तो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। बताओ, जो नहीं हो रहे हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्या रैंक हमारा वो टॉपिक्स डिसाइड करते हैं जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं? वो इज द डिसाइडिंग फैक्टर। जो नहीं पढ़े हैं, जो स्लोली 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 आपका सिलेबस कब फिनिश होगा, आप कब जेई के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग वेरी स्लोली, जो आपको बहुत हार्ड टॉपिक हो रहा है, राइट, द वन इन व्हिच यू आर सो वीक। सो वेरी सिंपल, है ना। तो सिमिलरली हमारे रिएक्शन का भी जो ऑर्डर है वो उसी पर डिपेंड करता है, यहाँ पे वो स्लो पड़ता है ना। अगर कहीं पे बम्पी रोड आ जाएगा तो वही तो आप बोलोगे यार इतना रोड आ गया, टाइम लग गया, हाउ वुड आई रीच ओवर देयर? ओके, हाँ वो मैं बता दूंगी, समझ, अभी रुको जरा। तो ये समझ में आया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, वी कांट गेट टू नो अबाउट इट। हमारे पास कोई कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम लोग पता कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। तो जिस रास्ते को आपने ट्रैवल किया उसका आपको पता चल जाएगा, तो जो रिएक्शंस आप पढ़ोगे वो आपको याद होती चले जाएंगी, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट कि अच्छा इसका ऑर्डर ये होता है। जैसे जस्ट लाइक वी हैव डन SN1 SN2, है ना। तो वो रिएक्शंस वो हैं जिन्हें हमने पढ़ा है, वी ऑलरेडी नो व्हिच स्टेप इज स्लो, व्हिच स्टेप इज फास्ट, है ना। तो वहां पे हमें ऑर्डर भी पता है अपने रिएक्शंस का, लेकिन जब तक हम रिएक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, नहीं उस रास्ते को चलेंगे, वी कांट अंडरस्टैंड, राइट। क्या लिखता है आई नो, ओके। तो वी हैव टू ट्रैवल, वी हैव टू डू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सो देयर आर वेरी फ्यू रिएक्शंस इन व्हिच द एग्जामिनर एक्सपेक्ट दैट यू मस्ट नो द ऑर्डर, ठीक है। स्लोली स्लोली जस्ट बाय डूइंग अ प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो दोस 4 5 रिएक्शंस, जस्ट लाइक यू अंडरस्टैंड SN1 and SN2 नाउ ना।
कि SN1 is a first order reaction, SN2 is a two order reaction. In the SN1 the slowest step there is only one reactant, but in the SN2 there are two reactants on which the rate of reaction depends. Right? Chalo. The rate of reaction of a particular reactant is directly proportional to its active mass or molar concentration raised to some power, and that particular power is known as rate of reaction. Now, what is molecularity? Molecularity is a very simple thing. बहुत simple है. It depends upon the net reaction. We can get about this molecularity from a net reaction, and we know there are many net reactions. N2 plus 3H2 gives you 2NH3, and NH4Cl plus H2O gives you NH4OH plus HCl. So there are many reactions which we know that how to write them. So molecularity is basically defined as, this is the last reaction which I'm telling you, just listen thoroughly. Molecularity is defined as the number of particles, atoms, ion, molecules of reactant actually taking part in a single step chemical reaction. ये उस पर depend करता है कि आपके single step means if I'm talking about a single step chemical reaction, so what I'm talking about actually, I'm talking about a net reaction, है ना? So I'm talking about a net reaction. So if I'm talking about a net reaction or a single step chemical reaction, so how many number of particles of reactant actually taking part? So how many number of particles of reactant actually taking part? 4. So here the molecularity is 4, and here the molecularity is 2. So ultimately molecularity depends upon the net chemical reaction, the one step chemical reaction, right? And order is something that depends upon the, we don't know on which step it would depend, right? We don't know on which step it would depend, है ना? So this we can determine very easily, but this not. So the it is going to be always a whole number. क्या आपने reactions को इनको कभी भी ratio में देखा है? 0.25 या have you seen कि 1 की जगह -1 mole of N2 you are taking? No ना. So this can never be negative, right? And if I'm saying that H2 plus half of O2 gives you H2O, so rather than saying this, I can say na 2 moles of H2 reacts with O2 to gives you 2H2O. I can also do this. So is it necessary that they are going to be a fraction? No, they are going to be a whole number. They could never be fraction. So molecularity can never be a fraction. Okay, just multiply by 2 and make it a whole number. Not even 0. Have you ever seen that 0 moles of H2 reacts with 1 mole of O2? No. So this could not be 0. Okay, so molecularity can never be 0, can never be a fraction, can never be negative. It will always be positive. So if the reaction is occurring, then definitely some of the reactants are reacting. कुछ तो है ना, कुछ तो है means something is greater than 0. So means something is positive over there, but it has to be a whole number. Okay, so molecularity will always be a whole number, and it depends upon the one step single step chemical reaction. Okay, now all these things we will be studying in the next class. So from the next class we have to start with the kinetics of zero order reaction. So I hope the molecularity and order is clear. A की power L इसलिए लिया है because L could be the order. Okay, चलो we will be having an example in the next class, है ना? अगले क्लास में example के साथ एक बार और देखेंगे. ठीक है, चलो this is it.